হ্যাঁ বলুন, বলুন। এখন কিছু পাঠাতে হবে না, মোহিত স্যার বলবে তারপর। Good morning, sir. মর্নিং। Good morning, sir. গুড মর্নিং। Who is VS? Vaishali Singh. Wow, you are create a logo. Hello. আমি আমি দিয়ে দেবো তাই বলছেন তো? ওটা মোহিত স্যার আমাকে এখনো কিছু বলেনি, কি দিতে হবে ওটা ঠিক আমার কাছেও ক্লিয়ার না। না না, মেল আমি পেয়েছি, কিন্তু কি দিতে হবে সেটা আমিও ক্লিয়ার না, মানে মানে ওরা কি চাইছে সেটা ক্লিয়ার না আমার কাছে। লাস্ট 3 মাসের অ্যাটেন্ডেন্স আমি তারপরে ফোন করেছিলাম, আমাকে বলছে শুনুন শুনুন আগে আমার কথাটা শুনে নিন। আমাকে বলছে যে লাস্ট 3 মাসে কে কি ক্লাস নিয়েছে তার জিনিস, সেটা তো পাওয়া, সেইটা তো বলেনি, কিন্তু আমি কথা বলেছি, আমাকে বলেছে সেটা। এবার এখন কি বলতে চাইছে আমি নিজেও ঠিক বুঝতে পারছি না। মোহিত স্যার দেখছে, মোহিত স্যার যা বলবে তখন বলবে। সেই তো, সেই তো। আমি জানি ম্যাডাম ওখানে কি বলেছে, আমি তারপরে ফোন করেছিলাম। আমার কথাটা শুনুন, আমার কথাটা শুনুন, আমি 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 জেনে বলছি, না জেনে বলছি না। তারপরে আমি বলেছি যে মোহিত স্যারের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। আমি আমি মোহিত স্যারের সঙ্গে কথা বলেছি। হ্যাঁ দেখুন, ওরা ওটা মনে হয় চাইছে না, দেখা যাক কি চাইছে। সেই হুম।
Roll number 29, your class supposed to start on 11:15. You are coming on 11:25. सर नहीं आ रहा था सर, होस्ट मीटिंग होस्ट अरे मतलब कि लिख रहा था सर अभी, इसीलिए क्या बैक अभी बोल लीव रहा किए था, थे। कैसे नहीं आ रहा था। जो भी है टाइम से आया करो, नहीं तो दिक्कत होता है सबके लिए। ओके सर। Rohit Kumar, you want to say something? सर कुछ पूछना था सर। बोलो। सर ये सर टी मोड है ना सर, ये सेकेंड लाइन उसमें लिखा था फर्स्ट स्लाइड में। टी मॉड। हाँ हाँ सर, उसमें लिखा हुआ है बोथ टाइमर 0 एंड टाइमर 1 यूज द सेम, इसका मतलब सर क्या है? बोथ टाइमर 0 टाइमर 1 मतलब? सर उसका मतलब क्या है सर? कॉल टी मोड। एक मिनट। Hey, I'm in a class. Any urgent? Okay. हाँ सर हाँ वो बोलो। सर टी मोड रजिस्टर है ना सर, बोथ टाइमर 0 एंड टाइमर यूज द सेम कॉल टी मोड टू सेट द वेरियस ऑपरेशन मोड ऑपरेशन। सर फर्स्ट स्लाइड का है सर, फर्स्ट स्लाइड। फर्स्ट स्लाइड यस सर। मतलब yesterday. यस सर टाइमर। Yeah, tell me. सर Roll number 29. Tell me. यस सर। सर वहाँ टी मोड लिखा, टी मोड बोथ T0 टाइमर 0 एंड टाइमर 1 यूज द सेम रजिस्टर, इसका सर मतलब क्या है सर? कौन सा? ये वाला? सर सेकेंड लाइन सर। Both timer 0 and timer 1 use the same register called tmod. देखो ये tmod जो है ना, इसका दोनों के लिए है। ये चारों बीट है टाइमर 1 के लिए, ये चारों बीट है टाइमर 0 के लिए। That's why written is there both timer 0 and timer 1 use this register called tmod.
ये दोनों टाइमर के लिए यूज्ड होता है, टाइमर 1 एंड टाइमर 0 के लिए। मतलब सर दोनों बोथ के लिए मतलब वो टी मोड रजिस्टर लिखा हुआ है। हाँ, बोथ के लिए टी मोड मतलब बोथ का फंक्शंस के लिए टी मोड रजिस्टर्स है। देखो चारों बीट टी टाइमर 0 के लिए है, चारों बीट टाइमर 1 के लिए है। तो Yes. ये टाइमर 0 के लिए है, ये टाइमर 1 के लिए है। तो दोनों के लिए ही दोनों टाइमर के लिए ही टी मोड रजिस्टर्स है। That is told over here. And you know over here is mentioned that to set the various timer operations modes. हाँ Anything else? Anything else? Anyone, if you have queries? Otherwise, I will be proceed for the next, First, just see this program. All of you can hear me? Yes sir. Yes, sir. CLR P2.3. First, clear P2.3. So in this program, there is a delay, right? First, they wants to know what is the time delay, and what are the what is this what are the questions over here. Find the delay generated by timer 0 in the following code using both method. Using both the method. Figure 9.4 do not include, forget about it. So just see CLR P2.3. So P2.3 is nothing but a P2.3 कौन सा पिन है? सर इनपुट पिन है ना सर उसका? हैं? इनपुट पिन ना है सर वो? इनपुट पिन नहीं, इसमें एक आउटपुट तुम दे सकते हो। तो कितना डिले होगा, पहले मैंने इसको 0 कर दिया, इनपुट पिन ना आउटपुट पिन हो, दैट विल बी डिसाइडेड बाय अस। सो फर्स्ट हम क्या किया, P2.3 को मैंने क्लियर किया। तो फर्स्टली मैंने 0 किया, राइट? नेक्स्ट मूव tmod, 01. What is the function of 01? What is the function of 01? सर मोड 1 में चल मोड 0 से मोड 1 Timer में 1, sir. Timer. If I am talking about the tmod register, so Yes, pin like this, 01 matlab 0000 0001. So we are using timer 0. That's Timer why 0. we are not thinking about it, right? Yes, We sir. are thinking only the timer 0. Get pin not set by the us, that's why 0. Timer operation, that's why C oblique T bar is equal to 0. Next 01 is for mode 0. 01 is used for mode 0. Mode 0. Sorry, No. mode 1. 01 No, is sir. for mode 1. Yes, Mode sir, 1. That is 16-bit timer mode. Next, we should be given some initializations value. This initializations value is B83E. It is B83E. I'm given the initial value. Here it is a mistake. It should be TI is 0. It should be TI is 0. TI is 0, B8. And TL0, 3E. So it will be B8, 3E. It's clear? Yes. Next,
set B P2.3, set B P2.3 is nothing but a, so firstly it is 0, first जीरो just सर see 1 हो जाएगा 0, so it will be 1, 1 यस Yes. सर it will be 1, first it is 0, so it will be 1. So next, sir, timer 0 is start for counting the clock pulses. Yes, sir. No sir, until give the TR0 bit is set, until TR0 bit is set. TR0 bit set करने से क्या होगा, ये corresponding गेट पिन को सेट करा के पूरा टाइमर को रन कराएगा for counting the clock pulse. To count the clock pulse, if we should be set TR0, we should be set TR0 for counting the clock pulse, we set TR0, right? तो ये TR0 है जो टाइमर से सेट किया है. नेक्स्ट JNB TF0, JNB means jump on Not borrow. not beat, अच्छा, jump on not beat. ये TF0 जितना देर तक 0 रहेगा उतना देर तक इसी लाइन में रिपीट करेगा. क्यों सर, ये वेट करेगा B8 से लेकर FF होने तक, इतना टाइम ये वेट करेगा. It will be wait till it is FFFF. So B8 to FFFF, इतना देर तक ये वेट करेगा, right? Next, CLR TR0, CLR TF0, दोनों को 0 कर देगा. CLR TF0 and CLR TF0 means काउंटिंग स्टॉप करेगा एंड जो ये फ्लैग सेट हो गया था इसको रिसेट करेगा. उसके बाद इसको फिर से 0 कर देगा. मतलब जितना देर तक ए रहेगा 1, जितना देर तक डिले रहेगा, इसके बाद इसको हाई कर देगा. तो ये डिले निकालना है, कितना टाइम का डिले है, कितना टाइम का डिले है. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. मैं फिर से बोल रहा हूँ, CLR P2.3 पहले इसको 0 करेगा, पहले इसको 0 करेगा. 0 करने के बाद देखो मूव टी मोड 01, मतलब टाइमर 1 मोड 2 को सिलेक्ट करेगा, टाइमर 0 मोड 1 को सिलेक्ट करेगा, टाइमर 0 मोड 1 को सिलेक्ट करेगा. नेक्स्ट एक इनिशियलाइजेशन वैल्यू, we are given an initial value on TI is 0 and TL0, TI is 0 and TL0. TI is 0 में हम देंगे V8 and TL0 में हम देंगे 3E. Next, set B P2.3. Set B P2.3 means Sir, P2.3 को सेट कर दिया, मतलब 1 कर देगा. 1 की है, पहले 1 0 कर- था, अभी 1 कर देगा. नेक्स्ट CLR CLR set B P2.3, set B TR0. Next again JNB TF0 again means सर मतलब ये TF जब तक 0 रहेगा तब तक यही लूप चलेगा. हैं? तो जब तक TF मतलब 0 रहेगा तब तक ये लूप चलता रहेगा. जब तक ये काम नहीं करेगा, ये TF0 जब तक 0 रहेगा तब तक ये लाइन रिपीट करते रहेगा. मतलब Yes. whenever the counting is going on, it will be 0, right? Yes. Next CLR TR0 means TR0 will be 0. CLR TF0 means TF0 also is 0. इन दोनों को 0 कर देगा. CLR TR0 means clear TR0 flag, clear TF0 flag. दोनों को 0 कर देगा. मतलब TR0 will be becomes a 0, TF0 also become a 0. TR0 is 0 for stop the counting and TF0 is 0 for as this bit is automatically set by the hardware, so it should be clear by the hardware, so that's why it is 0. Next CLR P2.3, मैंने P2.3 को 1 किया था, अभी डिले होने के बाद इसको 0 कर देंगे. तो इसको 0 कर दिया, 1 के बाद फिर से 0 कर दिया, 1 के बाद फिर से इसको 0 कर दिया. तो अभी डिले टाइम निकालना पड़ेगा. क्या करेंगे? इनिशियल वैल्यू कितना दिया था? B8 3F 3. Yes. तो FFFF माइनस B8 3 प्लस 1 जो मैंने Yes. पिछला दिन पढ़ाया, टोटल आएगा इतना, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने में से आएगा इतना. तो Divided by 12.
और इसको हम पकड़ रहे हैं 11.0592 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी। तो 12 by 11.0592 is nothing but a 1.085, so 1.085 से मल्टीप्लाई कर रहा है, इतना टाइम आ रहा है। अभी बोला है TH एंड TL, देखो B83 is nothing but in decimal, अभी डेसिमल से भी हम कर सकते हैं 65536 माइनस ये जो वैल्यू आएगा डेसिमल में उसको करने से वही आएगा, उसी के हिसाब से भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, दोनों टाइप का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोला, इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मॉडिफाई TL and TH in example the above, they get the larger time delay possible, find the delay in millisecond in your calculation, execute the overhead due to the instruction in the loop। पहले ये लाइन छोड़ दो, इन योर कैलकुलेशन से लेकर एग्जीक्यूशन इन द लूप छोड़ दो। इसमें सबसे ज्यादा डिले कब होगा बोलो तो? सबसे ज्यादा डिले इधर कब होगा? When the delay will be highest। कौन सा जगह को हम कंट्रोल करने से सबसे ज्यादा डिले इधर मिलेगा? कोई वैल्यू को चेंज करने से? कौन सा वैल्यू को चेंज करने से? सर ये सर TL0 को सर। TL0 क्यों? TH0 एंड TL0 दोनों को हम किधर से काउंटिंग किए थे? B83 कॉपी में देखो, B83E से काउंट किए थे, राइट? यस सर। किधर से काउंट करने से सबसे ज्यादा होगा? बोलो। 0 से सर। 0 एग्जैक्टली। तो 0 से हम काउंटिंग करेंगे, चलेगा FF तक, इसमें सबसे ज्यादा डिले मिलेगा। B83 से काउंट करने से FF तक जितना डिले मिलेगा उससे कई गुना ज्यादा टाइम डिले मिलेगा 0000 से FF तक काउंट करने के लिए, राइट? तो 0000 से लेकर FF तक काउंट करने के लिए सबसे ज्यादा टाइम डिले मिलेगा। तो देखो अभी क्या कर रहे हैं हम, इसको जो प्रोग्राम है पूरा सेम प्रोग्राम मैंने इधर लिखा है, सिर्फ TH0 एंड TL0 को मैंने 00 कर दिया, तो मैक्सिमम टाइम डिले मिलेगा। यस सर। यस सर। तो अभी इस जगह में 65536 माइनस क्या होगा? इसका वैल्यू कितना है? B83 के जगह में क्या है? 0 सो एक्चुअली FF माइनस 0 प्लस 1 मतलब एक्चुअली होगा 65536 माइनस 0। देखो मैंने किया 65536 माइनस 0 इंटू 1.085 इज इक्वल टू 71.1065 मिलीसेकंड। सेम प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को कैसे इससे सबसे ज्यादा डिले मिल सकता है वो है इसको हम लोग 00 कर देने से। अभी ये जो लाइन लिखा है, इन योर कैलकुलेशन एग्जीक्यूट द ओवरहेड ड्यू टू द इंस्ट्रक्शन इन द लूप। देखो सिर्फ डिले बोलने से ये नहीं होता है, इसके साथ कुछ इंस्ट्रक्शन जुड़ा हुआ है। जैसे सेट बी P2.3 बोलने के बाद सेट बी TR0 भी है, इसके लिए भी 1 मशीन साइकिल लगेगा। इसके लिए ये जो क्लियर TR0 इसके लिए भी एक मशीन साइकिल लगेगा, इसके लिए भी एक मशीन साइकिल लगेगा, लास्ट के लिए भी एक मशीन साइकिल लगेगा। तो ये चारों इंस्ट्रक्शन को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं JNB TF0 अगेन, मतलब हम इसी लाइन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं 0000 से लेकर 65536। बट ये होने के बाद भी तो ये तीनों इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, और इसके पहले भी एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किए थे। तो चारों इंस्ट्रक्शन के लिए तुमको तो 4 मशीन साइकिल लगेगा ना। सो दैट्स व्हाई यू आर, इधर क्वेश्चंस में बोल दिया एग्जीक्यूट द ओवरहेड ड्यू टू द इंस्ट्रक्शन इन द लूप, इसको ओवरहेड बोलता है। जो ये लूप को छोड़ के भी 2-3 जो इंस्ट्रक्शन रहेगा इज अ वेरी नेग्लिजिबल, सो एवरी टाइम वी आर एलिमिनेटिंग ऑल दोस थिंग्स, so you can eliminate, so that is given over here। It's clear? Yes sir। It's clear, or any doubts if you have so you can ask। Can I proceed? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। Yes sir। ओके तो इतना देर तक हम लोग जो किया, हम लोग देखो एक आर्बिट्ररी वैल्यू इधर बिठाया, राइट?
ये आर्बिट्ररी वैल्यू हम लोग बिठाया, कितना फ्रीक्वेंसी के लिए कितना वैल्यू होना चाहिए हम अभी तक किए नहीं। इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लोग करेंगे, हमको इतना फ्रीक्वेंसी का क्लॉक पल्स चाहिए, तो क्या क्या होगा प्रोग्राम वो लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट इन दिस प्रोग्राम, नेक्स्ट प्रोग्राम वी आर मेंशनिंग दैट we required this kind of certain frequency. So what will be the program? So just go to the next slide, then you can see what are the questions are over here. Just read the questions carefully. Assuming the Xtel 11.0592 megahertz, मतलब क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी बोल दिया 11.0592 मेगाहर्ट्ज। राइट ए प्रोग्राम टू जनरेट ए स्क्वायर वेव ऑफ 2 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। मतलब बोला है, तुमको कॉपी में देखो फर्स्ट क्या क्या बोला है। एफओएससी बोला है, कितना बोला है? 11.0592 मेगाहर्ट्ज, राइट। क्लॉक ऐसा जनरेट करना है, स्क्वायर वेव मतलब तुम समझ ही रहे हो 50% ड्यू टू साइकिल होगा, मतलब टी ऑन इज इक्वल टू टी ऑफ होगा। जितना देर तक ये होगा उतना ही देर तक इतना भी होगा, जितना देर तक टी ऑन होगा उतना देर तक टी ऑफ भी होगा, राइट। ड्यूटी साइकिल इसी को बोलते हैं, ड्यूटी साइकिल इसी को बोलते हैं। हाँ, ड्यूटी साइकिल भी 50% ड्यूटी साइकिल भी बोलता है, स्क्वायर वेव भी बोलता है। स्क्वायर वेव मतलब परफेक्ट स्क्वायर वेव मतलब टी ऑन इज इक्वल टू टी ऑफ होगा। अच्छा, तो टी इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं टी ऑन प्लस टी ऑफ। यस, और टी ऑन और टी ऑफ इज इक्वल टू इक्वल होगा तो क्या होगा? 2 टाइम्स हाफ हो टी ऑन हो जाएगा। जाएगा। यस, टी ऑफ के जगह में टी ऑन बिठा देंगे तो 2 टी ऑन हो जाएगा, यस, राइट। 2 टी ऑन होगा कि नहीं? यस। सर नेक्स्ट क्या करना है? बोलो, हमको क्या बोला है? 2 किलोहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी चाहिए, मतलब एफ बोला है। यस। एफ कितना बोला है? 2 × 10⁶। 2 किलोहर्ट्ज बोला है, 10 टू द नॉट मेगाहर्ट्ज बोला नहीं है, किलोहर्ट्ज बोला है। तो पावर 3 हो जाएगा। अच्छा, किलोहर्ट्ज। 2 किलोहर्ट्ज बोला है, तो Yes. T इज इक्वल टू क्या हो सकता है? 1/f यस, इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10 टू द पावर -3 होगा तो 10 टू द पावर -3 -3 सेकेंड, राइट, यस, इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर 6 माइक्रोसेकेंड बोल सकते हैं। यस। देखो इसमें कोई डाउट है तो पूछो हमको। मैं किलोहर्ट्ज नीचे था, ऊपर में लेकर गया 10 टू द पावर -3 किया, उसके साथ सेकंड भी किया। 1/हर्ट्ज मतलब सेकंड होता है। इट्स क्लियर? यस सर। तो अब इस सेकंड से माइक्रोसेकंड किया, 10 टू द पावर 6 किया। सेकंड से माइक्रोसेकंड किया, 10 टू द पावर 6 किया। So basically nothing but a 500 microsecond. Is it clear or not? बोलो। यस सर। देखो इधर 500 माइक्रोसेकंड निकाला है, तो डिले कितना चाहिए? ये तो निकल गया टी, तो टी ऑन क्या होगा? इज इक्वल टू टी ऑफ क्या होगा? 500 माइक्रोसेकंड। हैं? नहीं, 500/2 500/2 इज इक्वल टू 250 माइक्रोसेकंड। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। यस सर। सर एक एक मशीन साइकिल के लिए कितना लगेगा? 1.085। यस, तो कितना sir. मशीन साइकिल लगेगा? 250/1.085 यस, माइक्रोसेकंड। दोनों माइक्रोसेकंड काट जाएगा, ये नंबर आएगा। सो 230, देखो मैंने किया है 230 इधर। ओके, सो 230 काउंटिंग यू रिक्वायर्ड, 230 काउंटिंग यू रिक्वायर्ड, राइट।
Yes, sir. यस सर। तो मैंने क्या किया, देखो 65536 एक्चुअली क्या होता है, पिछला दिन मैंने बोला था 65536 वो F माइनस का x, क्या बोलो, मोड 1 का सर वैल्यू होता है 65536, जिसमें 1 इसमें मतलब मोड 1 का सर वो बताए थे ना 65536 माइनस n जितना नंबर होता है उसको फिर 1 माइक्रो सेकंड। हाँ हाँ हाँ, तो 65536 माइनस x इज इक्वल टू 230 होगा, बिकॉज 230 यू नो तुमको बोला है, तो x का वैल्यू कितना होगा, x इज इक्वल टू 65536 माइनस 230 होगा। ये क्या है इधर, इज इक्वल टू 65306, ओके, इज नथिंग बट ए FF1 है, इज नथिंग बट ए FF1 है। अभी तो बहुत इजी हो गया, जस्ट प्रोग्राम लिखना है विद द हेल्प ऑफ FF1 है। FF1 के अंदर FF जाएगा यू नो TH में एंड 1 जाएगा TL में। अभी तुमको कौन सा टाइमर यूज करना है, टाइमर 1 यूज करना है, तो TH1 में जाएगा FF, TL1 में जाएगा 1A। देखो मैंने मोड 1 फॉर टाइमर 1 के लिए 10H किया, दिखाए कैसे मोड 1 टाइमर 1, देखो ये 4 हम यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि दिस इज वी आर नॉट यूजिंग टाइमर 0, टाइमर 0 वी आर नॉट यूजिंग, तो इसको हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। तो क्या होगा, इसको 0 0 0 0 0 0, गेट वी आर नॉट सेट, सो 0, सी अब लिख टी बार काउंट टाइमर ऑपरेशन, दैट्स व्हाई 0, 0 एंड मोड 1 के लिए 0 1, सो इट इज 1, इट इज 0, 10H। देखो 10H टी मोड में मैंने डाले हैं, राइट, वी आर गिवन 10H into the T mod। नेक्स्ट TH1 एंड TL1 के अंदर FF1A मैंने स्टोर किया, TH1 एंड TL1 के अंदर हम FF1A स्टोर किया, राइट, TH1 एंड TL1 के अंदर FF1A स्टोर किया। नेक्स्ट सेट बी TR1, सेट बी TR1, सर इसमें सर पिन रिक्वायर्ड नहीं है सर, जो सेट 0 या 1 करेगा पल्स के लिए सर। सर पिन का इसमें जरूरत नहीं पड़ेगा, जैसे पिछले प्रोग्राम में दिए थे सर पिन 1.5 या 1.3 ऐसे करके। समझ में नहीं आया, बोलो बोलो फिर से बोलो ना। सर यहाँ पे पिन का यूज नहीं करेंगे सर, पिन 1.3 या 1.5 जैसे पिछला केस में सर 1.5 यूज किया ना, 1.5 यूज किया ना, कॉम्प्लीमेंट यूज किया, पिन 1.5 यूज किया मैंने। ओके ओके सर ठीक। मान के चलो P1.5 पहले से उसको 0 था, पहले से 0 था, कॉम्प्लीमेंट किया मतलब P1.5 1 हो जाएगा। उसके बाद डिले होगा, उसके बाद 1 होगा 0 होगा, 1 होगा 0 होगा, ऐसे करते चलेगा, क्योंकि स्क्वायर वेव ना कॉन्टिन्यूअस चलेगा। ऐसा नहीं है एक पिछला बार जो प्रोग्राम किया था उसको एक ही पल्स देना था, अभी इसको बहुत सारा पल्स हमको जनरेट करना पड़ेगा, इनफिनाइट लूप मतलब चलते रहेगा। तो सेट बी TR1 मतलब corresponding timer will be start, timer 1 will be start for counting the clock pulses, right, JNB TF1 back मतलब इसी लाइन में रिपीट करेगा until you know the count is over। काउंटिंग ओवर मतलब किधर से काउंट करेगा, कितना दूर तक जाएगा, it start from FF1A and it will be continue up to FFFF, so FF1A से लेकर FFFF तक काउंट करेगा, FF1A से लेकर FFFF तक काउंट करेगा। जब काउंटिंग खत्म हो जाएगा so it will be come into the next line that is CLR TR1 मतलब stop the counting, मतलब stop the counting, otherwise किधर से स्टार्ट कर देगा काउंटिंग,
काउंटिंग स्टॉप नहीं करने से किधर से स्टार्ट करेगा? हाँ? 0 से सर। 0 से शुरू कर देगा। तो 0 से Yes, शुरू sir. करने से तो हमारा नहीं चलेगा, हमको No, उससे sir. कनेक्ट करना है। हमको तुम्हारा FF1F से स्टार्ट करना है FF1 से सर। फिर से दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि हमको हाँ 2 सर। किलोहर्ट्ज का चाहिए, तो मैंने उसको स्टॉप करा दिया। So for the next, and I am toggle this one, CPLP 1.5. So CPLP 1.5 is nothing but from 0 it will be 1, or 1 so it will be 0. So it will be just toggle. Next, CLR TF1. What are the functions CLR TF1? ये जो flag set हो गया था, for overflow, timer 1 overflow, that will be again 0, क्योंकि ये next time के लिए काम में आएगा. Next, going into the SJAM again jump over here, again store the initial value, again start, run the timer, again coming into in a loop, that is until the counting is going on, same in the loop, then coming in the next line. So as a result, you will get a 2 kilohertz frequency. As a result, you will get 2 kilohertz frequency. Now your work, you do same question is that you just do it for 4 kilohertz. You do it for 4 kilohertz. You do it for 4 kilohertz. सर अगर ड्यूटी साइकिल 50% नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे सर? स्क्वायर वेव मतलब ड्यूटी साइकिल 50% होगा ही। कैलकुलेट करो, 4 किलोहर्ट्ज के लिए करो और बोलो कितना वैल्यू आ रहा है। ड्यूटी साइकिल 50% मतलब ही स्क्वायर वेव। सर FF8D
सर FF8D। सर आवाज नहीं आ रहा है सर। वैल्यू कितना आया? सर किसका सर? ये 250 की जगह में कितना आया? 115 आया 115 15 और 25। सर 15 125 आएगा सर। ये T हाँ, on equals to T 125 off। आएगा। अच्छा वो वाला, हाँ सर, हाँ सर, हम ये वाला कर रहे थे, मतलब मैजिन साइकिल बता रहे हैं। मशीन साइकिल, हाँ। तो ये आया 115। यस यस सर। अच्छा, अभी ये प्रोग्राम जो बोला है, हम ये प्रोग्राम ही मत लिखो। ये प्रोग्राम तुम टाइमर 1 मोड 2 में लिखो। टाइमर 1 मोड 2 में लिखो। टाइमर 1 मोड 2 मैंने प्रोग्राम लिखाया, मैंने दिखाए। देखो मोड 2 का प्रोग्राम ऐसा है, टाइमर 1 मोड 2। बोलो, एनीवन इज डूइंग? सर हेक्साडेसिमल में चेंज कर रहे हैं। सर कर रहे हैं सर। ये कितना से कितना सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा? सर ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम जैसे तो नहीं रहेगा ना। ये कितना से सब्सट्रैक्ट किए हो? ये किधर से सब्सट्रैक्ट किए हो? 6 5536 बाहर इधर किधर से करना पड़ेगा? मोड 2 में जाएंगे तो ये तो मोड 1 के लिए था। सर बोलो बोलो, तुम्हारा इजी कर दिया मैंने प्रोग्राम। मोड 2 में कितना काउंट कर सकता है भाई? सर मोड 2 में देखो मैंने लिखाया था। सर 256 माइनस THX इंटू 12 सही होगा। हाँ, तो 256 माइनस THX माइनस 130 होगा इधर। यस सर 130 130 ना 115? सॉरी सर 150 सॉरी सर 150 होगा उसमें माइनस 115 होगा। 115। तो कितना आएगा? 1 4 1 141 141 को तुम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो। इट्स वेरी इजी। 141 just convert into the hexadecimal, so you are dividing into the सर 8D सर 16। हाँ, सर 8D आएगा सर। 8D। यस सर। तो 8D आएगा। तो अभी इस प्रोग्राम में, इसी प्रोग्राम को तुम कॉपी करो। ये सिर्फ 5 के जगह में 8D बिठा दो और P1.0 के जगह में P1.5 कर दो, बस हो गया प्रोग्राम। सर वो डी मोड है सर, वहां चेंज हो जाएगा ना सर, क्योंकि टाइमर 1 और मोड 2 लिए तो सर उसके अकॉर्डिंग वहां पे वैल्यू चेंज होगा। हाँ, ये 20 किया ना, ये तो मोड 2 हाँ। का ही प्रोग्राम है। अच्छा सॉरी सर, नहीं हाँ। ठीक। ये मोड 2 प्रोग्राम पिछला दिन पढ़ाया था मैंने।
हाँ सर, हाँ सर। देखो इसका जब जाम करेगा ना, इट विल नॉट बी जंप इन द इनिशियल वैल्यू। इस प्रोग्राम और उस प्रोग्राम में डिफरेंस क्या है देखो, इस प्रोग्राम के साथ एक बार पहले समझ लो। इस प्रोग्राम में हम जाम कर रहा था किधर, इस जंप अगेन ये इनिशियल वैल्यू में। यस सर, इनिशियल वैल्यू। और ये जो टाइमर है, एक बार ऑफ कर रहा था, एक बार ऑन कर रहा था, एक बार ऑफ कर रहा था, हर एक बार ऑन कर रहा था। मगर ये क्या है ना, ये तो पकड़ेगा वही वैल्यू, इनिशियल वैल्यू जो हम दे देंगे, 8D दे देंगे तो 8D पकड़ेगा। So it will be constant 8D from everywhere. So from 8D to it will be count up to FF. After FF it becomes 0 0। no. नहीं sorry टाइमर 2 8D again. 8D again। 8D, यस सर, 8D 8D again. फिर से। 8D इनिशियल वैल्यू से शुरू करेंगे, FF काउंट करेगा, फिर FF के बाद 8D होगा। इसको और इनिशियल वैल्यू देने का जरूरत नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने इधर ये देखो, ये बैक जो किया है इधर नहीं किया है, ये बैक किया है इधर। और इधर देखो जो TR1 को जो एक बार ऑन कर दिया उसके बाद ऑफ नहीं किया, CLR TR1 नहीं किया। यही डिफरेंस है दोनों मोड में, मोड 1 में एंड मोड 2 में। मोड 2 में ये टाइमर को ऑफ करने का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट नहीं करेगा, ये इनिशियल वैल्यू जो हम दे देंगे उधर से स्टार्ट करेगा। Whereas you know for टाइमर 1 इनिशियल वैल्यू से फिर से तुमको देना पड़ेगा, जैसे इस प्रोग्राम में मैंने दिया है। इस जंप अगेन फिर से इधर से जंप करेगा, राइट। तो ये प्रोग्राम लिख लो, ये 5 के जगह में क्या लिखोगे, 8D, और P1.0 के जगह में P1.5। कंप्लीट। ये प्रोग्राम पूरा लिख लो, यूजिंग TH1 के जगह में मूव TH1, हैश 8DH, बस प्रोग्राम सेम होगा। P1.0 के जगह में, एज इस प्रोग्राम में हम लोग P1.5 किए थे, तो उधर में भी P1.5 करना है, P1.5 होगा। दोनों जगह में चेंज होगा, एक 5 के जगह में 8D होगा एंड P1.0 के जगह में P1.5 होगा। कंप्लीट। यस। सो प्रोसीड। ओके, नेक्स्ट अभी आया हमारा काउंटर ऑपरेशंस। ओके, काउंटर ऑपरेशंस में हम क्या कर रहे हैं, मैंने जो इस जो प्रोग्राम है, काउंटर मतलब एक पिन से काउंटर पिन में एक पिन आएगा, P3.5 में आएगा और पल्स। पिन कॉन्फ़िगरेशन याद है, देखो P3.5 में क्या है, P3.5 में क्या है, T1। तो अभी काउंटर ऑपरेशन मतलब P3.4 से पल्स आ सकता है, P3.5 से पल्स आ सकता है। पल्स मतलब ऐसा कोई क्लॉक पल्स आएगा, जो इस पिन में
आएगा, इस पिन में भी आएगा। ऐसा एक इस दोनों पिन में ऐसा क्लॉक पल्स आएगा बाहर से जो काउंट करेगा। काउंट कैसे होता है सर? तो कौन सा पिन नंबर याद रख देना, P3.4 एंड P3.5 इन दोनों पिन में आएगा। P3.4 इज नथिंग बट ए T0, P3.5 इज नथिंग बट ए T1। ठीक है, अभी देखो ये जो है P3.4 एंड P3.5 कॉपी में देखो, इन दोनों में हमारा क्लॉक पल्स आ सकता है। क्लॉक पल्स मतलब ऐसा कोई क्लॉक पल्स आएगा सर, इधर से इधर तक कितना होगा 1 फुल क्लॉक पल्स, इधर से इतना दूर तक, फिर इधर से इधर 2, फिर इधर से इधर 3। इज इट क्लियर और नॉट? Just 3. This is 1, this is 2, this is 3. Total full clock pulse is 1, 2, 3 as so on. Clear? हैं? Yes sir. देखो अभी क्या बोला, when 3/T1 ये तो counter, assuming that clock pulse are fed into the pin T1. T1 मतलब P3.5. It's clear or not? T1 enter into the pin T1. Enter into the pin T1. T1 मतलब P3.5. P3.5, right? Write a program for a counter in mode 2 to count the clock pulse and display of the TL1 count on P2. Sir, auto reload mode. Mode 2 माने मतलब क्या है? Mode 2 मतलब Auto reload mode. auto reload mode. Auto reload mode में TH1 are storing the initial value and TL1 are used for counting the value. मैंने लिखाया था TH1 are used for store the initial value and TL1 are stored for the counting the value. TH1 used for store the initial value and TL1 store the counting the value. सर हम लोग कभी भी काउंट करेंगे तो काउंट किधर से शुरू करता है? सर 0 0 0 सर। वेरी गुड, तो इधर इनिशियल वैल्यू कितना होना चाहिए? सर 0 0 और 0 0 होना चाहिए, 0 0 होना चाहिए और कोई बात नहीं है, इसीलिए मूव TH0 TH1 इज इक्वल टू 0। यस सर। ये लाइन मैंने समझाया, ऊपर वाला नीचे वाला कुछ नहीं समझाया, सिर्फ इसको समझाया। कभी भी हम लोग काउंट करेंगे, हम बोलेंगे तुम्हारा अभी इसमें कितना स्टूडेंट है, तो तुम देखो इधर हर एक दिन स्टूडेंट घटते जा रहा है, कल से हम क्लास नहीं लेने वाला है, इतना कम स्टूडेंट में हम क्लास नहीं लेते हैं। तुम लोग इंटरेस्टेड नहीं हो तो थैंक यू, बाय बाय, आई विल नॉट टेक। सो you know TH1 you know it will be 00H. TH1 it will be 00H because TH1 00H क्यों होगा सर? TH1 00 क्यों होगा सर? क्योंकि इनिशियल वैल्यू से ही न इनिशियल लेगा वैल्यू सर। 0, क्योंकि हमको हर एक हाँ। बार काउंट करना है। तुम्हारा अभी कितना जोन क्लास कर रहे हैं, तुम 0 से शुरू करोगे, इनिशियल वैल्यू 0 पकड़ लोगे, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके काउंट करोगे। तो जब भी हम लोग कुछ काउंट करता है, वी आर काउंटिंग ऑलवेज फ्रॉम 0, राइट? सो दैट्स व्हाई TH1 इज इक्वल टू 0। अभी क्या बोला है? अभी कोई टाइमर बोला है? काउंटर 1 बोला है, काउंटर 1 इन मोड 2, काउंटर 1 इन मोड 2। देखते हैं क्या होता है।
फिर से वो ये करो टी मॉड, फिर से टी मॉड 1 2 3 4 5 6 7। सर लास्ट ये जो 4 है इसको क्या है, काउंटर को कितना बोला है, 1 तो काउंटर 0 क्या होगा, 0 0 0 0 तब 0 0। सर गेट पिन को हम लोग सेट कर सकते हैं, नो सर नो तो सर 0। सर सी ऑब्लिक टी बार इतना देर तक हम लोग टाइमर ऑपरेशन सर, कर रहा था इसीलिए 0 हो रहा था, अभी अब 1 काउंटर करना ऑपरेशन पड़ेगा। करेंगे इसलिए Yes. 1। you know as we are using hello you call me, you call me after 1 hour, okay? I'm now busy right now, I am taking a class. You call me after 1 hour. Is it clear? Move Yes, T mod is 0 and why C oblique T bar is equal to 1, as it is a counter operation. Counter operation matlab it's a counter operation. Counter operation matlab C oblique T bar should be 1. And sir कौन सा मोड बोला है, मोड 2 मोड 2. Mode 2 M1 and M0 will be M1 1 1 0 1 sir. 0. So just these number are put in a binary form. You can store any form. You can store in hexadecimal or you can store in a binary. So here it is stored in a binary. Just last you see B is mentioned. So it is a binary. Is it clear? yes, यस सर 00H डेसिमल में भी जो 00H, बाइनरी में भी जो 00H, हेक्साडेसिमल में भी वही 00H। सो 0 के बाद कुछ नहीं लिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ नहीं लिखना मतलब कौन सा पकड़ता है, डेसिमल, राइट? डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल 00H मतलब 00H। सर you are counting the clock pulse means clock pulse will be coming from P3.5. Clock pulse is coming through P3.5. Clock pulse is coming through P3.5. P3.5. सर आप चाहे भी तो P3.5 का डेटा आप टाइमर 0 में नहीं कर सकते काउंटिंग, क्योंकि A रिलेटेड टू टाइमर 1, A रिलेटेड टू टाइमर 0। टाइमर 0 का यूज करना है तो P3.4 यूज कर सकते थे, टाइमर 1 को करना है तो P3.5 भी करना पड़ेगा। सो क्लॉक पल्स बाहर से आएगा माइक्रो कंट्रोलर के पास, एम आई राइट? Clock pulse are coming from outside into the microcontroller. Am I right? sir, yes, sir. I'm repeat once again. Clock pulse will be coming through microcontroller. Clock pulse are coming through microcontroller. I'm repeat once again. Clock pulse are coming through outside into the microcontroller. Am I right? Yes, sir. Outside sir. Outside से आएगा ना, तो काउंटर ऑपरेशन Yes, sir. बाहर से आएगा। हाँ Yes, sir. तो माइक्रोकंट्रोलर के लिए इनपुट होगा कि आउटपुट होगा? इनपुट होगा। इनपुट होगा सर, इनपुट होगा। एज ए तो इनपुट। कभी भी किसी की पिन को इनपुट करना है, बाय डिफॉल्ट ऑल आर आउटपुट। कोई भी पिन एंड एनी पोर्ट इफ यू वांट टू यूज्ड एज अ इनपुट, initially you should be given a high signal or for port FF. I already discussed in some previous program. I am repeat once again. Any port you can treat as an input port. Initially you should be given high signal or 1 and that particular pin. 1 देना पड़ेगा और हाई सिग्नल देना पड़ेगा इन दैट पर्टिकुलर पिन। तो 1 देने के लिए क्या होगा सर? सेट बी P3.5, इसको हम सेट कर दिया। मतलब P3.5 is nothing but a T1. It will be act as a input. It will be act as a input. Is it clear or not? Yes. It will be act as a input. Clear to everyone? Yes, sir.
Clear or can I proceed? I'm repeat once again. Just see, set B P3.5 is nothing but a, you are given a high signal on that particular pin, means this pin will be act as an input. This pin will be act as an input. P3.5, you are given a high signal on that, so it will be act as an input. It's clear? Yes, sir. So can I proceed? Yes, sir. Only Gaurav Kumar is there. Rest all are kya? So gaya kya? Next, again, set B tier 1. What are the function? Again, set B tier 1. Again is छोड़ दो. Set B tier 1 means मतलब सर हाई हो जाएगा सर वो सिग्नल, मतलब 1. 1 हो जाएगा. टाइमर 1 को 1 कर देगा. Right? यस Yes, sir. Next, sir, move A, TL1. मतलब क्या? TL1 मतलब क्या है? What are the function of TLX in mode 2? Mode 2. Sir, सर TLX का सर वही काउंटिंग करने के लिए सर यूज किया Counting जाता है. करने के लिए यूज. तो TLX now is counting. yes, TLX is now counting. यस सर. तो TLX is counting कर रहा है. तो ये जो काउंटिंग का वैल्यू वो एक्यूमुलेटर में आ रहा है. यस सर. 0 0 0 1 जो भी काउंट किया वो एक्यूमुलेटर में आ जाएगा. yes, एक्यूमुलेटर से पोर्ट 2 में चला जाएगा, जिधर डिस्प्ले होगा. कितना काउंट हुआ उसको डिस्प्ले करा देगा. सर yes, पोर्ट 2 से डिस्प्ले होगा. हाँ, पोर्ट 2 से डिस्प्ले होगा. यही बोला है क्वेश्चंस में, देखो. ऑन पोर्ट 2. ओके सर. तुम इधर पोर्ट 3 तो कर नहीं सकते हो. बोलो तो क्यों? क्योंकि पोर्ट 3 से इनपुट आ रहा है. पोर्ट 3 से इनपुट आ रहा है. एग्जैक्टली करेक्ट आंसर. उसको तुम अभी पोर्ट 3 को तो यूज नहीं कर सकते हो. हाँ, तुम्हारे पास और भी पोर्ट था. पोर्ट 1 था, पोर्ट 2 था, पोर्ट 0 था, कुछ भी यूज कर सकते हो. मगर हम लोग इधर पोर्ट 2 यूज कर रहे हैं. तो मूव P2, A, मतलब जो काउंटिंग जो वैल्यू है वो आ गया इधर. राइट? yes, नेक्स्ट, JNBTF1. व्हाट आर द फंक्शंस JNBTF1? sir. जंप नॉट बिग. Not big. नॉट 0 होने से जंप करेगा. किधर जंप करेगा? इधर से जंप करके मूव. Back. फिर इस लाइन है. यस सर. Back में काउंटिंग चला तो चल जाएगा. रहा है. काउंटिंग चल रहा है. काउंटिंग बंद नहीं है. काउंटिंग चल रहा है. तो क्या करेगा? TL1 मतलब क्या, कितना वैल्यू है? फिर 01 की जगह में 02 हुआ, 03 हुआ, कुछ भी हुआ. TL1. दैट विल बी डिपेंड अपॉन द दिस क्लॉक. क्लॉक कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, उसके ऊपर काउंटिंग कितना टाइम लगेगा उसको डिपेंड करता है. वो हमारे आप तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, और माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रहा है. इट विल बी आउटसाइड फ्रॉम द एक्सटर्नल क्लॉक. सो व्हाटएवर द क्लॉक T state, that will be depend. So again it will be count 1 to 2 or 2 to 3, whatever it is, again coming into the accumulator and accumulator to port 2. So this loop will be repeat once again and once again until it is 0, until it is FF, until it is FF. FF तक ये 00 से लेकर FF तक ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा. राइट? सर ये यस सर, इसमें सर कितना पल्स होगा सर, ये कैसे पता चलेगा? कितना पल्स मतलब? सर जो आउटपुट में मेरा डिस्प्ले होगा ना सर, हाँ, डिस्प्ले होगा. तो सर वो कितना होगा सर, कैसे ये पता चलेगा सर? वेरी गुड. वो भी होगा. अब है ना तुम्हारे लिए. हाँ सर. एक छोटा सा सर्किट बना देता है. ठीक है सर. देखो, P2.0, P2.1, P2.2, ऐसे करके P2.7, हर एक के पिन के साथ मैं एक LED जोड़ देता हूं. सबसे अच्छा डिस्प्ले जो है, सबसे इजी जो डिस्प्ले है, वही हम लगा रहा हूं अभी. बाद में हम दिखाएंगे LCD. तो अभी तो LCD नहीं पढ़ाया, तो मैंने 7 से LED से काम चला रहा है. एक रेजिस्टेंस देके ग्राउंड. अभी बोलो, हमारे पास आया है फिर 5 B, हमारा काउंटिंग आया है 12.
12 हुआ है काउंटिंग। और क्या बोलोगे तुम, बोलो कुछ, छोड़ दो। 1C काउंट में आया है, 1CH काउंट करने के बाद तो आएगा ना 1C कभी ना कभी। यस सर आएगा कितना सर। दूर तक काउंट करेगा, 00 से लेकर 1C 1C FF तक। FF तक अच्छा, FF तक ये काउंट करेगा, FF जिसमें इसके अंदर 1C। कुछ भी वैल्यू आ सकता है। यस सर। तो 1C मतलब क्या है बाइनरी में, 0001, C मतलब 1100। यस देखो हर एक में एलईडी रहेगा, हर एक में एलईडी रहेगा, तो ये एलईडी ऑन होगा, ये एलईडी ऑन होगा, ये एलईडी ऑन होगा, बाकी रेस्ट ऑल अदर एलईडी विल बी रिमेन स्टॉप। देखो 5 एलईडी ऑफ रहेगा, 3 एलईडी जलेगा। इसको देख के तुमको पता चलेगा अभी 1C डिस्प्ले हुआ है। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. हर एक में एलईडी लगा हुआ है, लगाने के बाद हम जिसमें जिसमें 1 हुआ वो एलईडी जलेगा, जो नहीं होगा वो 0। मतलब हम पकड़ेंगे, अभी इधर से है क्या, ये क्या कौन सा पिन के साथ जुड़ा हुआ है, P2.0, ये किसके यस साथ सर जुड़ा हुआ है, P2.7। 2.7। तो इधर से देखते देखते आओ, ए ऑफ, ए ऑफ, ए ऑन, इसके बाद नेक्स्ट ऑन, इसके बाद नेक्स्ट ऑन, 6 7, ये सब ऑफ। ऑफ। तो ऐसे करके हम जलेगा एलईडी, ऐसे एलईडी जलेगा। अभी यस जलने से सर। हम क्या देखेंगे, इधर हम डेटा ले लेंगे 0 0 1 1 1 0 0 0। हम इधर से देखेंगे लिखने का टाइम 0 0 0 1 1 1 0 0। तो हम डिस्प्ले देखेंगे 1C। यस सर। Clear or not? यस सर क्लियर। So it will be display on port 2. It will be display on port 2. Okay. यस Next, JNB TF1 back. So TF1 को क्या होगा, अभी 0 कर देगा। सॉरी, जितना देर तक 0 रहेगा, जितना देर तक 0 0 से FF चल रहा है, उतना देर तक तुम्हारा ये चलता ही रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। कब खत्म होगा, जब FF हो जाएगा। Whenever it's complete FF, then come back. So FF होने के बाद क्या करेगा सर, क्लियर कर दो सर 0 0 में CLR जाएगा। TR1, CLR TR1 इधर नहीं करने से भी चलता है, क्योंकि इनिशियल वैल्यू इसका 0 ही पकड़ेगा। मगर हम Yes, sir. CLR TR1 क्यों किया, क्योंकि हम ये जो दोनों लाइन एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि CLR TF1 तो हमको करना ही है, और एस जंप अगेन भी हमको करना है। इन दोनों को लाइन जो काउंट करेगा, उस टाइम शायद एक काउंट और बढ़ जाएगा, तो तुमको 1 नहीं दिखाई देगा। इसीलिए हम क्या किया, इसको एक बार स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने के बाद CLR TF1 किया, TF1 जो था उसको जो सेट हो गया था ऑटोमेटिकली, उसको हम रीसेट किया। इसके बाद एस जंप अगेन किया, इधर से जाम करके इधर जाएगा। So this loop repeated once again and once again, and on port 2 you will be see the display 002 FF. You see the display 002 FF. And 0 के बाद 1 कब होगा, 1 के बाद 2 कब होगा, that will be depend upon the these clock pulse. ये क्लॉक पल्स के ऊपर डिपेंड करेगा जो बाहर से आ रहा है। इसका जो विड्थ है, ये कितना बड़ा, इसका टी कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। टी बड़ा हो सकता है, टी छोटा हो सकता है, टी मीडियम हो सकता है। टी के ऊपर डिपेंड करेगा कितना देर तक वो 0 1 2 ऐसा डिस्प्ले दिखाएगा। क्लियर? यस सर। सो नेक्स्ट, सर अभी देखो इसका काउंटर ऑपरेशन। सब काउंटर ऑपरेशन मतलब एक काउंटर 0 के लिए है, तो पिन 3.04 से आएगा, मैंने अभी बोला है। P3.4 से पल्स आएगा, C/T1 रहेगा, TR0 सेट होगा, तो ये काउंट करेगा। FF से 0 होगा, तब TF0 सेट होगा। सिमिलरली ये भी काउंटर ऑपरेशन मोड 2 के लिए है। TL0 में काउंट करेगा, और TH0 जब भी ये रीसेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जो रीलोडेड वैल्यू होगा, जो इनिशियल वैल्यू होगा, उसको दे देगा। राइट? Picture is clear to everyone? यस सर।
Any queries if you have, you can ask. It's a very simple one. Only C bar is equal to 1, nothing else. ये क्लॉक पल्स बाहर से आएगा, ये काउंटर 1 के लिए होगा तो फिर 3.5 के लिए होगा, ये भी काउंटर 1 होगा तो फिर 3.5 होगा, 0 होगा तो फिर 3.4 होगा। जो तुमको हम अभी बोला है वही इधर दिखाया है। एक P3.5 में पल्स आ रहा है, उसके बाद इधर एलईडी लगा हुआ है, जो एलईडी में तुम डिस्प्ले दिख पा रहे हो। पोर्ट 2 में P3.5 में पल्स आ रहा है, उसको डिस्प्ले दिखा रहा है। सेम प्रोग्राम मैंने इधर और एक बार लिखा है, एक ही प्रोग्राम। यस सेम। ओके यस। अभी आएगा हम लोगों का सीरियल कम्युनिकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय सीरियल कम्युनिकेशन? बोला था एक बार शुरुआत में। सीरियल कम्युनिकेशन एंड पैरेलल कम्युनिकेशन बोलो। सीरियल कम्युनिकेशन मतलब डेटा जो होता है सर वो एक जगह से दूसरे जगह, फिर उस जगह से तीसरे जगह जाता है। और पैरेलल मतलब सर हेलो सर, ये सीरियल मतलब सर ना कि एक टाइम में एक ही मतलब सेंड, क्या बोलते हैं सर, वन एट अ टाइम, मतलब एक ही बार एक ही मतलब कि डाटा सेंड कर सकते हैं सर। एक मतलब एक बार में एक ही मतलब की वो उसको थोड़ा डिटेल्स बोलो, ठीक बोल रहे हो सर। जैसे कि एक सेकंड में एक बीट या एक ऐसे करके डाटा, एक बीट यस सर। एक सेकंड में नहीं, हर एक टाइम एक बीट सेंड करेगा। यस सर, मतलब एक बीट सेंड करेगा। हाँ, और सर पैरेलल कम्युनिकेशन में एक साथ 8 बीट डेटा ट्रांसमिट करेगा, 8 बीट डेटा ट्रांसमिट करेगा एट ए टाइम। यस सर। हमारे साथ हमारा क्लोज रिलेशंस रहेगा, मतलब क्लोज डिस्टेंस रहेगा, तो आई कैन कम्युनिकेट विथ यू इन अ पैरेलल कम्युनिकेशन। हम क्लास में पढ़ाते थे तो पैरेलल कम्युनिकेशन में पढ़ाते थे। अभी हम बहुत दूरी में आ गया, लगभग 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन यू एंड मी, सो वी आर नाउ कम्युनिकेट विथ ए सिंगल लाइन और सिंगल बीट, दैट इज कॉल्ड सीरियल कम्युनिकेशन। सीरियल कम्युनिकेशन मींस तुम्हारे साथ हमारा जब डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, 8 लाइन एक साथ लगाना बहुत मुश्किल है, 8 लाइन एक साथ लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 8 लाइन इधर से 500 किलोमीटर लेकर जाना यू नो वेरी कॉस्टली। सो आई विल बी connect only one line which is nothing but a connected with you and me, and a one line I send one bit right। इसको हम लोग बोलते हैं सीरियल कम्युनिकेशन, एंड एक साथ 8 बीट जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल कम्युनिकेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। नजदीक में रहेगा तो पैरेलल कम्युनिकेशन पॉसिबल, दूरी में रहेगा तो सीरियल कम्युनिकेशन में जाना पड़ेगा। पैरेलल कम्युनिकेशन इज वेरी डिफिकल्ट। इधर से दिल्ली का कम्युनिकेशन करेंगे तो पैरेलल कम्युनिकेशन नामुमकिन है। क्लियर? यस। क्लियर और नॉट? यस सर। कैन आई प्रोसीड? श्योर सर। वेरी गुड। ये जो सीरियल कम्युनिकेशन है दो टाइप का होता है, वन इज सिंक्रोनस एंड अनदर इज एसिंक्रोनस। वन इज सिंक्रोनस एंड अनदर वन है एसिंक्रोनस। अभी सिंक्रोनस क्या है, एसिंक्रोनस क्या है? सर क्लॉक पल्स पे डिपेंड करता है उसको हाँ करेक्ट, बट नॉट फुल्ली करेक्ट। I just give you idea. 1 minute. हाँ सर, ना क्लास, हाँ बोलूं सर, बोलूं ना এই একটা সময়। আচ্ছা আচ্ছা বলুন না স্যার। আচ্ছা আচ্ছা আমার লেগে গেছে। ঠিক ঠিক আছে।
Next, is it clear? Clear to you? Yes. So synchronous and asynchronous तुमने बोला सर एक क्लॉक पल्स के ऊपर डिपेंड करता है, हम बोला ठीक, तुम more or less correct, but I just give you example so it will be very much clear. What is PC? I can say this answer in two different way. How? Just listen carefully. PC is nothing but a program counter. The next instruction to be executed, the address of the instruction stored into the PC. That is the function of program counter. Are you able to understood? Nice, sir. So your clock frequency and my clock frequency are not match. If your clock frequency and my clock frequency is matching, so you are able to understand, right? I am the faster device, you are the slower device. So you know, whenever I give a data in this, you know, your speed and my speed is equal, so you can able to understand. But whenever your speed and my speed is mismatch, or your speed is less with respect to my speed, so how I can say? I will be say like that. What is the PC? Yes, sir. PC is nothing but a program counter. Yes, sir. The next instruction, yes, sir. To be executed, yes, sir. The address of the instruction, yes, sir. Store into the PC, yes, sir. That is the function of the, yes, sir, program counter. Yes, sir. What does it mean? What does it mean? मैंने क्या बोला? Yes, sir. कौन बोला? हम लोग, sir. Exactly. So I give a particular small data. I give a small data. I give a small data, and you know, I give a small data, and you know, as a small data, you are given an acknowledgement. This is a positive acknowledgement. Yes, sir. So I send another data. So like that, what is the function of PC? You are not saying something. Means I assuming that your acknowledgement is negative. You are not saying something, so I am assuming your acknowledgement is negative. So what I say? I say, will we repeat once again? What is the function of program counter? You are not saying something. So again, I am assuming this is your negative acknowledgement. I am saying again, what do you mean by program counter? Now you say yes. As you say yes, so I understood that this, you know, terminology, whatever I say, you are understood, or you are capable to capture, or you store the data in your memory. So I can send another data. I can send another data. So क्या send कर सकते हैं अभी हम? PC is nothing but, yes sir. So ऐसे yes sir जितना बार करोगे उतना बार हम सोचेंगे you are given me a positive acknowledgement, I will be send another data. So at a time we are sending 8-bit data. At a time we are sending 8-bit data. At a time we are sending 8-bit data, right? More than 8-bit data is not possible at all. More than 8-bit data is not possible at all. 8-bit data at a time is possible. More than 8-bit data होगा तो वो possible नहीं होगा. Right? Clear or not? Yes. ये जो 8-bit data एक साथ भेजने का है, roll number 26. Are you able to understood? Roll number 26. Are you hear me? लॉगिन करके चला जाता है क्या? रोल नंबर 26 किसका है? शिवांगी का।
Shivangi Kumari is not there. Yes, sir. You are there. Yes, sir. I asking you several times. सो गया था क्या? No, no, sir. वो म्यूट कर दिए थे ना, तो फिर वापस आवाज आने में दिक्कत होती है। अच्छा ठीक है। मैंने ना तुम जो बदमाशी किया, जो हमारा साइलेंट हमारे साथ बात नहीं किया, हम जब क्वेश्चंस किया था, मैंने तुमको पार्सल करेंगे छोटा छोटा पीस करके तुम्हारा घर में, छोटा छोटा पीस करेंगे, हर एक उंगली काट देंगे, राइट, हैंड काट देंगे, इधर से एक टुकड़ा करेंगे, इधर से एक टुकड़ा करेंगे, इधर से एक टुकड़ा करेंगे, ऊपर वाला एक, इधर में एक, इधर में एक, इधर में एक। अभी ये जो काटने के बाद इसको हम पैक करेंगे, क्योंकि घर में जाकर लगाना पड़ेगा ना स्क्रू से। तो इसको मैंने जब काटेंगे, काटने के बाद इसका ऊपर रैप करके मैंने लिख देंगे राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, ऐसे करके हम लिख देंगे। सो यू नो whenever it will be fixed once again, it can be easy to fix up. As a result, you just see this is just like a data frame. Here 8-bit data D0 to D7. This data will be the data D0 to D7. One is a start bit, one is a mark bit, one is a start bit, one is a stop bit, and one is a space. First is mark, then start bit, then D0 to D7 is a data bit, then there is a stop bit, and there is a space. So you know it is a mark, it is a start bit, then D0 to D7 is the data bit, then there is a stop bit, and there is a space. So all those data is nothing but a, all those data is nothing but a, it's called a data frame. It's called a data frame. It will be starting from D0 to D7. So you know it is called data bit, and it will be starting with a start bit, ending with a stop bit, and you know it is called a data frame. Total is called data frame. एक डेटा को हम रैप करके ऐसे करके हम भेजेंगे। कभी कभी ये स्टॉप बिट एक के जगह में 2 हो सकता है, कभी कभी ये डेटा बिट D0 to D7 के जगह में 9 डेटा बिट हो सकता है, 9 D0 to D8 हो सकता है। कभी कभी वो जो D8 होगा उसको हम लोग you know as a parity checker use कर सकते हैं, as a parity checker. So this total is called data frame. Total is called data frame. You can remember? Total is called data frame. Data frame. And this data frame, whenever your speed and my speed is not matched, we are sending like that, and it is called asynchronous data transfer. It is called asynchronous data transfer. क्या लिखा है? Transfer a single byte at a time. देखो एक साथ एक ही बाइट जा रहा है। D0 to D7 कितना होता है? 8 बिट होता है। 8 बिट मतलब 1 बाइट। Yes sir. और हर एक बाइट के बाद, हर एक बार स्टॉप बिट के बाद, you give me a acknowledgement, you give me a positive acknowledgement. So you are given a positive acknowledgement, so I send another data. If you are giving me a negative acknowledgement, I will be send the same data once again. तुमको रिसीव नहीं होगा तो तुम नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट दोगे। नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट देने से हम क्या करेंगे, ये डेटा दोबारा भेजेंगे, और तुम पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट देने से हम दोबारा दूसरा डेटा भेजेंगे। और सिंक्रोनस में क्या होगा, ट्रांसफर ए ब्लॉक ऑफ डेटा, मतलब what is the PC? PC is nothing but a program counter that takes to be executed. That is the instruction stored into the PC. That is the function of program counter. So it's nothing but I send a block of data, and after that you give me acknowledgement, yes sir, means you are able to understood. That is called synchronous communication. In synchronous communications, we are getting acknowledgement after a block of data. When asynchronous communications, I get given a single byte of data, you give me acknowledgement, I send another data. If you are given not acknowledged, so I send this data once again. Clear or not? Yes sir. Yes, sir. Clear to everyone? सर ये नीचे सर वो फिगर बनाया सर, उसका Yes, सर sir. क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर, वो नहीं समझ में आ रहा सर। एक कौन फिर सा? जीरो सर, D0 से यहाँ तक D7 ये पकड़ लिया, कोई भी डेटा है, ये ऐसा ही डेटा होगा, ऐसा बात नहीं है।
ये ओ कभी सर ठीक है देखो सर, 0 होने से ग्राउंड कर रहा है, 1 होने से हाई कर रहा है। तुम्हारा मान के चलो सारा 1 है तो सारा हाई होगा। यस एफएफ भेजना चाहते हो, ये क्या भेजा 0 1 0 0 0 0 0 1, मतलब ये है 4 1 41 भेजा है। तुम दूसरा कुछ डेटा भेजोगे तो उसके हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। 0 रिप्रेजेंट लोअर, 1 लोअर represent high हाई, fold. यस And सर, start beat always, you know, it is a lower, and stop beat always it's high. ओके हैं? ठीक, हाँ सर, तो तुम जब डेटा रिसीव करोगे, तुम क्या करोगे? रोल नंबर 26 का जब हाथ तुमने रिसीव करोगे राइट हैंड, तो तुम क्या करोगे? उसको राइट पीस है हैंड तो जब उसको रिसीव सर, करोगे और सर रैपर जोड़ना को होगा। खोल के बाहर फेंक दोगे और उसमें और तुमको पता चलेगा ये राइट हैंड है। सर कुछ भी कुछ भी क्या? सर ऐसा तो नहीं होता है, हैं? सर ऐसा नहीं होता है। ऐसा ही होता है। नो सर, तुमको सुनाई नहीं दे रहा, तुम क्लास छोड़ के भाग गया था। सर तो भागे नहीं थे सर, म्यूट अनम्यूट करने में टाइम लगता है। सो 26 यू नो 26 का जो भी है, जो भी डेटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट को एलिमिनेट करके ये जो डेटा बिट है इट विल बी स्टोर इन अ पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन, इट विल बी स्टोर इन अ पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन, बट स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट को छोड़ के, ये स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट हम लोग जब रिसीव करेंगे इसको एलिमिनेट करके हम लोग ऑटोमेटिकली पहला बिट को हम लोग छोड़ देंगे, तो स्टार्ट बिट हो गया। नेक्स्ट बिट से हम लोग लगातार 8 बिट लेंगे, उसके बाद और नहीं लेंगे, तो स्टॉप बिट भी छोड़ दिया। राइट राइट सर, यस सर, वेरी गुड। सो नाउ चलो हम लोग देखते हैं इसके बाद क्या है। सर हाँ बोलो। सर असिंक्रोनस में ही तो वन सिंगल बीट डेटा ट्रांसफर किया जाएगा, पर सिंक्रोनस में तो सिंगल बीट करके जाएगा, मगर हाँ एट ए टाइम 1 बाइट डेटा एक साथ एक हाँ डेटा फ्रेम की तरफ जाएगा। हाँ हाँ, पर सर जो सिंक्रोनस है उसमें तो ब्लॉक जा रहा है, हाँ, ब्लॉक में भी 1 बाइट ही डेटा जाएगा, नो मतलब नो नो 16 नो 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 नो, एक साथ 100 बाइट डेटा चला जाएगा। मतलब उसके बाद तुम एक्नॉलेजमेंट दोगे, यस आई एम रिसीव्ड। तो सिंक्रोनस में तो 16 बिट डेटा हो सकता है ट्रांसफर। 16 बिट क्यों, हजारों मतलब बिट हो सकता है, एक साथ 100 बिट भेज दो, 200 बिट भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने क्या अच्छा बोला फिर से सुनो। What is the function of PC? PC is nothing but a program counter. The next instruction to be executed, the address of the instruction stored into the PC. That is the function of program counter. Are you able to understand? You say yes. So it is a synchronous data communication. हम देखो हर एक बार छोटा छोटा के बाद हम यस सर तुमसे नहीं पूछ रहा है, मैं एक साथ लगातार बहुत सारा डेटा भेज दिया, ये ब्लॉक ऑफ डेटा भेज दिया, उसके बाद तुमको समझ में आया हाँ सर ने जो बोला हमको समझ में आया, बिकॉज योर स्पीड एंड माई स्पीड, रोल नंबर 31 स्पीड एंड माई स्पीड इज बेसिकली सेम। यस सर। इफ योर स्पीड इज लेस विद रिस्पेक्ट टू मी, तो तुमको समझ में नहीं आता था, तो हमको कैसे भेजना था? व्हाट इज अ पीसी? सिंगल बिट करके। यू से यस सर, पीसी इज नथिंग बट अ प्रोग्राम काउंटर। यस सर, मतलब तुमको देखो एक छोटा छोटा करके दे रहे हैं हम, और तुम रिसीव कर रहे हो उसको, कोई जगह में तुम्हारा मेमोरी में स्टोर कर रहे हो, मेमोरी में लिख रहे हो, लिखने के बाद तुम बोल रहे हो यस सर, सो आई सेंड द अनदर डेटा। Whenever you are not sending any acknowledgement, I repeat the same data once again. ओके सर। मैं जब पढ़ाते हूं तुम लोगों को हर एक टाइम इसी मोड में पढ़ाता हूं। कौन सा मोड में? एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस। इसीलिए मैंने पूछता हूं आगे जाए क्या दोबारा कुछ क्वेश्चंस है, कभी तुम लोग रोल नंबर 26 जैसा होगा तो वो तो लॉगिन करके सो जाएगा तो बस हो गया, बात खत्म। तो नहीं होगा तो फिर कोई सर आंसर लॉगिन देता है। करके सोना रहता तो लॉगिन नहीं करता, आप वीडियो भेजते वो यूट्यूब में देख लिया करते। Wow, you impressed me a lot. So
हर एक दिन देखो। YouTube का वीडियो मैंने इसीलिए दे रहा है तुमको, हमको भी बहुत डेटा इसके लिए बर्बाद हो रहा है, मगर हम ऐसा कोई मतलब तुम लोगों के लिए स्पेशल डेटा काट लिया, उसके बाद मैं वीडियो दे रहा है, क्योंकि ये पढ़ने के बाद एक बार रात में सोने का टाइम तुम लोग आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट पढ़ना नहीं है, सिर्फ उसको देखना है, उसमें भी तुम लोगों का पढ़ाई हो जाएगा, एक रिपीटेशन हो जाएगा, तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा तो यू नो क्लियर इज अ गुड हैबिट, आई अप्रिशिएट इट, एवरीवन इट करो, अच्छा होगा। तो वो वीडियो जिस दिन पढ़ा रहा हूँ उस दिन रात में एक बार करके देख लो, देखो तुमको और कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगा उस टॉपिक में, और कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो नेक्स्ट दिन पूछो, आई विल बी डिस्कस वंस अगेन, नो इशू। हम आगे जाएंगे ही नहीं जब तक तुम यस सर नहीं बोलोगे। यस सर मतलब आगे चल रहा है सर अब। ना सर, यस सर Positive मतलब output. पॉजिटिव Positive एक्नॉलेजमेंट, positive sir. acknowledgement, because we are enter into the Asynchronous. asynchronous mode, right? Yes, sir. Okay, anything else with respect to that? If you have, you can. इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, तुम लोग पढ़ लेना। Data must be converted into the serial bits, तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे जाएगा। इसमें हम एक भाषण लिखे हैं, उसमें एक बार पढ़ लेना। You know this slide when I established, Sir, when you were studying BTech third year, yes, sir. in that particular time no one knows about the microcontroller. एकदम न्यू आया था उस टाइम में। चलो बोलो, any queries you have? No, sir. Any queries? No sir. So can I proceed? Yes sir, आगे। आगे जाइए, वाह वाह वाह। There are three kinds of data transfer. One is called you know simplex. Simplex मतलब सर मतलब हम लोग कुछ इधर से नहीं भेज सकते, जैसे कि न्यूज। एग्जैक्टली हम आज पढ़ाएंगे, ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो वो रोल नंबर 26 जैसे छोटा छोटा पीस करेंगे, तो you cannot say anything, otherwise you know there will be a problem. So always transmitter is transmitting and receiver will be received, just like your you know your televisions, your radio, whatever you say, you can say anything in front of TV, in front of radio, that this news is not you know correct news, it is a bad news, you know this is not happening, anything you can say. On the other hand, no one can you know see or no one can listen you. Is it clear? Yes. देखो now this is the half duplex mode. half duplex mode मतलब अभी देखो मैंने सबको म्यूट करके रखा है, so it is nothing but a half duplex mode. Whenever you say I will be mute, means transmission and reception can be done but not in the same time. एक साथ नहीं possible है. Transmission is done, then it will be reception, and reception will be done and then transmission. And you know for full duplex, अभी किधर हो? सर मोबाइल फोन। अभी किधर हो? हाँ मोबाइल फोन घर तो है। तुम घर लोग में। बोल देते हो मम्मी पढ़ाई कर रहा है, मगर पीछे से आवाज आ रहा है एक मूवीज का और यू नो इन ए मार्केट का, so तुम बाहर गए हो, so whenever you go to outside in the market, so you say something or not say something, but we can understood that your sound is nothing but a coming from just like a market or just like a, you know any movies. So that's why is you know it is a both way communication, means transmission and reception can be done in the same time. सब अभी unmute कर देंगे तो सबका noise आना शुरू करेगा, means हम भी बोलेंगे तुम लोग भी बोलोगे एक साथ, तो you know it will be just like a full duplex communication. Full duplex मतलब transmission and reception can be both in the same way. In microcontroller
whatever we have the UART, it is a full duplex. Means transmission and reception can be done in the same time. Clear? Synchronous and asynchronous, already we discussed. It's RST232C. It is discussed later on. Remember this thing, it's a very important one. Baud rate selection. Baud rate selection is nothing but to select 9600 baud rate, the value of TH1 is equal to -3, that is the FD. To select the baud rate, -6 is equal to FA, and 2400 is F4, and 1200 baud rate is E8. What do you mean by baud rate? सर यूनिट है सर, यूनिट है. यूनिट है. इसका यस यूनिट. सर. सर सीरियल. इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस आया है इसमें. तो सर क्या सीरियल है NPTEL में? बोलो. सर सीरियल ट्रांसमिशन का सर वो यूनिट है, मतलब कि बीट पर सेकंड, उसी को तो बोलते हैं. Beat per second. How many beat you are transmit per second? That is called baud rate. यस How many beat you are transmitting per second? It's called baud rate. How many beat you are sending per second? It's called baud rate. So baud rate is nothing but how many beat you are sending per second. It's called baud rate. It's clear? Yes, sir. So ये baud rate selection करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? देखो टाइमर 1 मोड 2 ये यूज करना पड़ेगा. टाइमर 1 मोड 2 यूज होगा हर एक टाइम में द baud rate selection करने के लिए. Baud rate is selected with the help of timer 1 with the auto reload mode, that is the mode 2. So for the various baud rate, TH1 में क्यों रहेगा? क्योंकि delay generate करने के लिए. As we know, in a mode 2 is nothing but a auto reload mode. Mode 2 is nothing but a auto reload mode. Auto reload mode में क्या होता है? Auto reload mode में the data always stored in where? बोलो. THX में सर डाटा स्टोर. Yeah, THX में store होगा because it is the initial value we are storing. That's why always the data is storing into the TH1 because to select the baud rate, timer 1 mode 2 is using. So that's why TH1 is storing the value of initializations value to select the baud rate. अभी इसको लिख लो. ISCON register. SM0, SM1, SM2, RAN, TB8, RB8. This is not T1. This is a TI and RI. SM0, SM1, SM2, RAN, TB8, RB8. Next it is TI and RI. Complete? यस सर. अब इसका फंक्शन हम पढ़ाएंगे मगर थोड़ा टाइम लगेगा. आधा घंटा होगा? हैं? यस सर कर दीजिए. Yes, sir. Okay. So SM0, SM1 and SM2 is nothing but is used to select the various mode. For SM0 and SM1 and SM2 that will be discussed later on. You can read it is from this pin that SM2 is used in mode 2 and 3 set 1 when bit 9 is received data and 1 is an interrupt is generated. Means ये जो है SM1 and SM2 whenever we read
we will be read that there are several mode, you know, just 3 SM0 and SM1. 00 means it's called 8-bit UART. It is called 8-bit UART fixed variable baud rate. 8-bit UART fixed variable baud rate. Baud rate is equal to FOSC by 12. Baud rate is equal to FOSC by 12. And 01 is nothing but a it's called 8-bit UART, 8-bit UART, 8-bit UART, and you know variable baud rate. Variable baud rate. Baud rate is selected by timer 1 mode 2. Baud rate is selected by timer 1 mode 2, and you know the 10 is nothing but a UART fixed baud rate. Baud rate is nothing but a FOSC by 32 or FOSC by 64, and 11 means 9-bit UART variable baud rate, which is baud rate is generated by timer 1 mode 2. FOSC by 32, FOSC by 64, FOSC by 12, FOSC by 24 is nothing but if it is a fixed baud rate. Depend upon the frequency of oscillation, it will be automatically generated. And if you need the various kind of baud rate, then you should be go either in 8-bit UART mode, that is a mode 1, and or you know you mode 3, that is 9-bit UART mode. What is the difference between 8-bit and 9-bit UART mode? As we already discussed in the, you know, whenever we discuss the data frame, there is a 8-bit data. There is a 8-bit data. In 8-bit data, one is a start bit, and in the last there is a one is a stop bit, and together is called data frame. Together is called data frame. Sometime the data bit may be 9. Sometime maybe the one stop bit is added. Sometime one parity bit is added. On those cases, we are using the 9-bit UART mode, because we have a 2 different mode. If we are using the whatever the data frame I shown to you, it's called 8-bit UART mode. If 9-bit UART mode, so there will be extra 1 data bit, extra 1 stop bit, or extra parity bit. So in all the cases, we are using the 9-bit UART mode, right? So that is the difference between 9-bit and 8-bit UART mode. Next, if we are going into the details, RAIN is nothing but a receive enable. After set this bit, data can be received by the microcontroller. After you know set the bit, data can be received through microcontroller. Whenever we are transmit or we are received, always RAIN bit will be set. Otherwise, we cannot receive the data, as well as we cannot receive the acknowledgement also. So receive enable bit always be set. Next, TB8 and RB8. Sir, we have a SBUF register. Full form is serial buffer. Full form is serial buffer. Full form is serial buffer. In serial buffer, we can, you know, to store the data, that is a 8-bit. So extra 1 bit, that is bit 8. That is the bit 8 will be stored in TB8 or RB8. It will be stored in TB8 or RB8. Extra 1 bit at the time of transmission, it will be stored in TB8. At the time of reception, it will be received in RB8. At the time of transmission, it is stored in a TB8, and at the time of reception, it will be received in RB8, right? Next, TI and RI. It's called transmission interrupt flag. At the beginning of start bit, at the beginning of the start bit, TI flag will be set. At the beginning of the start bit, TI flag will be set. It indicate that a data is sent to you and it will be received. And RI is nothing but a receive interrupt flag. Receive interrupt flag. Receive interrupt flag is nothing but a whenever data is received through a microcontroller at the halfway of stop bit. देखो मैंने जो पढ़ाया था उसमें at the beginning of start bit मतलब सर लो रहेगा सर. ये एकदम beginning of the start bit मतलब इधर TI flag will be set at the beginning of a start bit. At the halfway of stop bit मतलब इसका ठीक बीच में stop ये you know RI flag will be set. TI and RI. Transmission interrupt flag that is called TI is nothing but at the beginning of the start bit. Beginning of the start bit means तुम जब एक डेटा सेंड कर रहे हो, हमको पता होना चाहिए that you are sending me a data, so I will be ready to receive the data. That's why TI flag is indicate that you know you are transmitted data.
whenever I receive the data at the halfway of stop bit, I send a signal, that is the RI is nothing but a receive interrupt. I send you to RI, so you are, you know, this is just like acknowledgement. So you are acknowledged that I am received all the data. You can send another data, so you will be send another data. Why it is a halfway? Because whenever I store the data, it required to store in a particular memory location, and SBUF should be free. Otherwise, you know, SBUF will be, if one data, previous data is there, so another data will be coming, so it will be overlap. To minimize this overlap, at the halfway of stop bit, RI flag will be set. It is the function of TI and RI. It is the function of TI and RI. Okay. And that is the functions. And you know, this is the functions. And these are the mode, various mode, mode 0, mode 1, mode 2. How to calculate this mode is baud rate. Every one mode is there. Next, this is the PCON. Full form is power control. Full form is power control. And now I think most of the people, only 11 is there. Rest all are left. Okay, I will be discussed tomorrow. And tomorrow I don't know whether this class is maybe continue or it will be stopped. सर कंटिन्यू कीजिए सर. Huh? सर कंटिन्यू सर कर दीजिए. तो सर Bye. Bye.